Assalamu alaikum. Well, today we are going to start a subject of which everybody is dreaming of. Uh, Being in civil service, what's the important thing is that we are going to involve ourselves in public administration. Uh, Before going into the details of the lecture, one thing I should tell you: there are so many subjects, and to teach rest of the subjects remains always an easy option. But whatever the concept about public administration is, because many of the proponents are of the view that public administration is primarily an art. Well, to teach an art is a very difficult thing because it can only be practiced. It's more easy to practice an art, but it's difficult to teach an art. But we will try our best to know what this is and what's the picture of that. So today's lecture is basically about the introduction of public administration. Well, as far as the introduction is concerned, well, as a subject, it's the invention of 20th century. But we should be sure of this concept that public administration was not a thought which came in 20th century. Actually, the man who used to live in caves, perhaps, he himself was a public administrator, being a family head. He was trying to take care of the affairs of his family. So at the minimum scope, with the minimum level, actually, he was also a public administrator. Actually, this subject, as a study, this subject is because of the change of the concept of the state. Previously, the state concept was the security state, and the security state used to emphasize on basic two things. Number one, they used to collect revenue from the people, and then they used to give to security to the people. This was the concept of the old security state. कि जी लोगों से आप रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और इन रेस्पॉन्स आप उनको सिक्योरिटी देते हैं फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स. रियासत का ये कॉन्सेप्ट था जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट एज ए डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ था. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि स्टेट का कॉन्सेप्ट तब्दील हुआ फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टेट टू द वेलफेयर स्टेट. और वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर आप स्टेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टू द डेथ ऑफ द पर्सन, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ इज कनेक्टेड विद द स्टेट. So this change of concept about the state popularized this subject as a discipline of public administration. जरा ओरिजिन की तरफ आते हैं कि ये सब्जेक्ट का ओरिजिन क्या है. देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्राइमरीली द फर्स्ट टाइम इट्स इंट्रोडक्शन एज अ सब्जेक्ट वाज इन ईरान. तो ईरान में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हुआ करते थे, अभी आप इंशाल्लाह जब सिविल सर्विस क्वालिफाई करेंगे तो आप एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर जाकर ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे. तो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, एंड द प्रोफेसर्स ऑफ कैमरल साइंसेस थे, दे यूज्ड टू टीच दिस सब्जेक्ट टू द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स so that they should be knowing what public administration is and how to move about. So with the passage of time, ये concept जो कि ईरान से start हुआ, it's traveled to the USA, और USA में इब्तदाई तौर पे इसको experimental art कहा जाता था, और बाद में इसको as a whole full-fledged subject जो है वो भी ले लिया गया. देखना ये है कि इस सब्जेक्ट ने evolute कैसे किया है. After its origin, we need to know कि इस सब्जेक्ट का evolution कैसे हुआ है. Well, as far as the evolutionary history is concerned, this subject is basically has taken its current situation where it is now. There are 6 basic stages, but there are some important factors which played its role regarding its evolution. Number one, the development of the modern sciences all across the world was one of the prime factor जिसने motivate किया कि public administration को भी as a subject आना चाहिए. Number two, जो मैंने अभी अर्ज किया कि the concept of the change of the concept from the security state to the welfare state that precipitated this particular thought कि public administration as a subject आना चाहिए. और फिर जो steady development थी और steady growth जो थी in the various social, economical, other fields of the life,
उसने भी काफ़ी हद तक इस मामले को मोटिवेट किया. सो एज फार एज एवोल्यूशन इज कंसर्न, उसमें फर्स्ट स्टेप ये है एवोल्यूशन का, द फर्स्ट स्टेप ये है कि इन 1887 एक एसे पब्लिश हुआ जो था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद 1926 में एक बुक भी पब्लिश हुई विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एल.डी. वाइट की ये किताब थी. सो प्राइमरीली जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसे था, वो कहता क्या था? वो कहता ये था कि देयर मस्ट बी डाइकोटमी इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. व्हाट मीन्स डाइकोटमी? डाइकोटमी मीन्स, देखिए, इफ दिस इज द वन ब्रांच एंड इट इज at particular point it is divided into two parts, this is known as dichotomy. I mean, politics is something different, administration is something different. So the first stage emphasizes on dichotomy of the concept. I mean, administration and politics are two separate concepts. Well, the second stage कंटिन्यूड, और उस सेकेंड स्टेज के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट्स थे उसमें लूथर गुलिक हैं, और उनका मानना ये था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इट्स बेसिकली मैनेजरियल टास्क, और एक कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम पास कॉब कहते हैं. इसमें ये जो मैंने एब्रीविएशन लिखे हैं, P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D for directing, CO for coordinating, R for reporting and B for budgeting. तो अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पास कॉब है, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन. यानी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए पहले आप प्लानिंग करते हैं, फिर उसका को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं. जब आप ऑर्गेनोग्राम बना लेते हैं, आफ्टर प्लानिंग आप ऑर्गेनोग्राम बनाते हैं, ऑर्गेनोग्राम बनाते हैं, फिर आप स्टाफिंग करते हैं, यानी यू डिप्यूट द अप्रोप्रिएट पीपल एट द अप्रोप्रिएट पोजीशंस. उसके बाद व्हाट यू डू इज डायरेक्टिंग. आई मीन, उनको आप ट्रेनिंग्स देते हैं कि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उन्हें कोई काम कैसे करना है, और उसके साथ फिर आप क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन सेटअप बनाते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन भी होता है, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है. इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेशन से एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कम्युनिकेशन का नेटवर्क को इंश्योर किया जाता है. देन इट्स रिपोर्टिंग. आई मीन, रिपोर्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट. एंड द लास्ट थिंग इज बजटिंग. वेल, बजटिंग के बारे में ये है, कहा जाता है कि फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यू कांट रन एनी टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट फाइनेंस. So the budgeting is the important aspect to run any administrative activity. So the second phase of its evolution was from the concept of the past of planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. Then comes its third stage. Well, the third stage starts from the concept of Chester Bernard in 1953. This was the second stage is primarily of the post-COP concept, and the first one, as I said, 1887 में एक ऐसे था, और फिर उसके बाद 1926 में एल.डी. वाइट की वो बुक थी जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. वेल, थर्ड है 1953 में चेस्टर बर्नर्ड ने ये कहा कि ये जो दो बेसिक एवोल्यूशनरी स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, जिसमें फर्स्ट ये कहती है कि देयर इज अ डाइकोटमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और सेकंड स्टेज ये कहती है कि जनाब इट्स अ प्योर मैनेजरियल टाइप ऑफ टास्क विद हैविंग दीज टाइप्स ऑफ स्टेप्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एटसेट्रा. तो चेस्टर बर्नर्ड वाज ऑफ द व्यू दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट सो सिंपल एक्टिविटी. उनका मानना ये था कि जो डाइकोटमी इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो वैसे पॉसिबल नहीं है. यू कांट सेपरेट द पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन. और नंबर 2 उनका व्यू पॉइंट ये था कि यू कैन नॉट इग्नोर द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स व्हाइल डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन. ये नहीं हो सकता कि आप सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दें. लिहाजा ही एम्फसाइज ऑन सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, निगेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ primarily negating the concept of dichotomy in public administration ना. So इसलिए उनका ये थॉट आया कि social psychological factors are important. फोर्थ स्टेज, जो फोर्थ स्टेज है उसमें बेसिकली हर्बर्ट साइमन थे, रॉबर्ट दाहुल थे,
they altogether rejected the classical approach. ये जो हमने पहले दो अप्रोचेस की बात की वो बेसिकली क्लासिकल थॉट था, साइंटिफिक थॉट, जिसको हम नॉन एम्पिरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहते हैं. So in this fourth evolutionary stage, the classical approach was totally rejected. The observations taken by Chester Burland were also considered to some extent, but at the same time they were of the view the social psychological factors से कहीं ज़्यादा important एक और चीज़ है, that is the humanitarian factors. उन्होंने कहा देखिए, men are a means to an end. This concept is against the human rights basically. So what you need to make important, देखिए ये कहा जाता है कि ऐसा देखिए, you have to get administration out of the people, and if you are ignoring the people working for an organization, you can't run an organization. So the humanitarian factor is very important. So this particular जो approach है, sorry जो evolutionary stage है, इसने shift किया from pure formalism to the informalism. Then comes the fifth one. जो फिफ्थ स्टेज है उसमें बेसिकली F.W. Riggs came up with a new thought. He was of the view that the comparative study approach is very important. यानी in a changing circumstances, in a particular situation, you have to compare that in a particular situation which of the approach is more suitable. आपको कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे एक पर्टिकुलर से केस स्टडी आपके सामने आती है, एक सिचुएशन आपके सामने डेवलप होती है, तो आपने बेसिकली करना क्या है, आपने इन तमाम अप्रोचेस को वन बाय वन देखना है और देखना है कि कौन सा पर्टिकुलर अप्रोच किस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है. ये भी मुमकिन है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मल्टीफेरस जॉब. एट द सेम टाइम एक ही वक्त में एक से ज़्यादा अप्रोचेस का सहारा लेना पड़ जाए. सो जो कंपैरेटिव स्टडी अप्रोच है F.W. Riggs की, वो बात करती है कि इन तमाम एस्पेक्ट्स को आप एट द सेम टाइम देखिए. देन कम्स द सिक्स्थ स्टेज. सिक्स्थ स्टेज क्या कहती है? एवोल्यूशन का ये सिलसिला है कि देखिए, वी हैव मूव फ्रॉम अ फॉर्मलिज्म टू द इनफॉर्मल. वी वर एम्फसाइजिंग ऑन डाइकोटमी इन पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन फर्स्ट स्टेज. वी वेंट टू द सेम साइंटिफिक अप्रोच ऑफ पास्ट कॉप. Then we come from social psychological factors. Then we have shifted towards the humanitarian factors. Then we have shifted ourselves in fifth stage from all of these approaches that in a particular situation you need to compare. Came up with the comparative study approach. And the last thing is that keeping the circumstances and these of the four elements. वो कहता है ये चार elements का आप ख्याल रखें. जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो यू नीड टू कीप इन माइंड दीज फोर फैक्टर्स. नंबर वन, रेलेवेंस. व्हाट डज इट मीन बाय रेलेवेंस? रेलेवेंस मीन्स दैट विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस यू हैव टू चेंज योर अप्रोच टू रिजॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम. You cannot be stagnant in your particular approaches. Keeping in mind the changing circumstances, you have to make the relevant decisions accordingly. Number two is the values. What you need to do is, you need to keep yourself open to the values. You need to consider the demography of a particular area when you are involved in administration, and keep in mind the values of that particular area. All types of social norms, values, all of the custom, traditions, you should be keeping in mind while making the decisions, the values of that. Then comes the equity. Equity means you have to distribute the resources on equitable basis. देखिए, whenever in administration you are going to take some biased decisions, it will create its own problems. So you need to keep in mind the equity factor. And the last thing, change. You have to change yourself. You have to stop that status quo. You have to break that status quo, and whenever it is necessary, you have to accept the change. देखिए, change is the only thing which is resisted. At the same time ये कहा जाता है कि change is the only thing which is permanent in nature.
सो आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पर्टिकुलर जो अप्रोच है, तो ये कहते जो 6th हमारी स्टेज है वो ये कहती है कि हमें क्या करना है, हमें जनाब पर्टिकुलर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ खुद को चेंज करना। सो दीज वर द एवोल्यूशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स कम टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is basically originated from a Latin word, combination of two words, ad this minister, which means to serve, to serve. अब जब हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टू सर्व द पब्लिक, इयन ग्लेडन ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू लुक आफ्टर द पीपल, टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द पीपल। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, इट्स अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कॉमन फंक्शन। वो पब्लिक में भी होता है, वो प्राइवेट में भी होता है। सो एज फार एज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कंसर्न्ड, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, एड एंड मिनिस्टर, व्हिच मीन्स टू सर्व, एंड व्हेन वी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टू सर्व द पब्लिक. In the concept of Ian Glidden, it's to look after the people, to manage the affairs of the people is public administration. Right, Chi? Let's try to define the concept. Definition of public administration. देखिए, primarily अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो 3 तरह का स्कूल ऑफ थॉट पाया जाता है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है जो कि लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, इयन ग्लेडन ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटिंग द ऑर्डर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा, हमें इतना आइडिया तो आई होप ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी हैविंग कि जब भी हम किसी रियासत की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर वहां पे 3 ब्रांचेस होती हैं, एंड द 4th पिलर ऑफ द स्टेट इज नोन एज मीडिया। अब जो 3 ब्रांचेस हैं उसमें एक है आपकी बुनियादी तौर पर जो आपकी लॉ मेकिंग है, ठीक है, पार्लियामेंट जिसको आप कहते हैं, लेजिस्लेशन जो करते हैं रियासत के लिए, बुनियादी तौर पर जो लेजिस्लेटिव पिलर है वो एक है जो लॉ मेकिंग करता है। दूसरी जो चीज है दैट इज द एग्जीक्यूटिव्स, द पीपल हु इंप्लीमेंट दोज लॉज। अब एक ऐसा मुल्क जिसमें द टाइप ऑफ कंट्री वी हैव लाइक पाकिस्तान, इंडिया, वहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज एक्चुअली वर्क्स एज एन एग्जीक्यूटिव। और जो तीसरा पिलर आपको नजर आता है दैट्स जुडिशरी। जुडिशरी वो है जो आपके, दैट्स द कस्टोडियन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दे इंटरप्रेट द लॉज, जो भी आपकी लेजिस्लेशन, रूल्स, ज़ाब्ते, लॉज बनाती है, उनके इंटरप्रिटेशन का जो राइट है वो आपकी जुडिशरी। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि जनाब द बेसिक फंक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इज टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। यानी जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट आपको कन्वे करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है कि इन द लाइट ऑफ द रेलेवेंट रूल्स उनकी इंप्लीमेंटेशन करें। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है जिसमें प्रोफेसर विलोबाई हैं और दूसरे लोग हैं, उनका मानना यह है कि प्राइमरीली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स केयर ऑफ ऑल 3 ब्रांचेज ऑफ द स्टेट। यानी उनका मानना यह है कि लेजिस्लेशन भी, एग्जीक्यूटिव्स भी और जुडिशरी की हद तक भी, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज इन्वॉल्व्ड समवेयर इन ऑल ऑफ दीज 3 ब्रांचेज, सो दे एक्चुअली टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑल 3 ब्रांचेस। और तीसरा स्कूल ऑफ थॉट इसमें यह पाया जाता है जो कहता है कि नहीं जी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ओनली इंप्लीमेंटिंग द ऑर्डर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि आप तमाम की तमाम ब्रांचेस का काम करते हैं, बल्कि उनका मानना यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेटिंग सेटअप बिटवीन ऑल द 3 ब्रांचेस ऑफ द स्टेट। यानी वो एक कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करते हैं बिटवीन लेजिस्लेशन, बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एज वेल। सो प्राइमरीली अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में हमें 3 तरह के स्कूल ऑफ थॉट मिलते हैं, और वो 3 स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो, एक तो स्कूल ऑफ थॉट एज आई सेड इज ओनली इंप्लीमेंटिंग द ऑर्डर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये है कि दे एक्चुअली implement all the 3 branches, functions of the all 3 branches, and third one is only the coordination between them. Well, as there is so much diversity
in defining the concept of public administration, as we discussed, there are three basic school of thought. Same is the case with the scope of public administration. देखिए, what is meant by scope? Scope का बुनियादी मकसद ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, as a discipline, ये जो सब्जेक्ट है, which are the areas which are covered by this particular subject, right? अब जैसे मैंने अर्ज किया कि the way it's difficult to define this concept, same is the case with scope. जब हम scope को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी इतनी ही डाइवर्सिटी है जैसे हम डिफाइन करते हुए करते हैं। बुनियादी तौर पर दो स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं इनके स्कोप के हवाले से। एक को हम कहते हैं मैनेजेरियल स्कूल ऑफ थॉट। अब जो मैनेजेरियल स्कूल ऑफ थॉट है, बेसिकली वो जो पहले मैंने आपको बताया कि जब हम ये समझते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग विच इज जस्ट अ मैनेजेरियल फंक्शन, तो मैनेजेरियल स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट दी स्टेप्स: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. But the criticism which came on this managerial school of thought is that public administration is not that simple. It's a complex phenomena. And what we have tried is we have tried to simplify a complex phenomena into very simple school of thought. It's not a household affairs which can be taken care of just this particular concept of PASCOP. So as I said, it is a complex phenomena, and there's another thought which is known as subject matter view. And subject matter view says that it's a complex phenomena and we should be taking care of this particular subject in the same particular area. अब सब्जेक्ट मैटर व्यू जो है बेसिकली वो ये कहता है, उसमें लेवस मिरियान है, वो कहते हैं कि बेसिकली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इट्स जस्ट लाइक अ सिसर हैविंग टू ब्लेड्स, जिसमें ब्लेड नंबर 1 का क्या फंक्शन है? ब्लेड 1 हैज अ फंक्शन एज नॉलेज ऑफ द फील्ड, knowledge of the field, that you should be having basically the skills and the capability of a particular field which you are going to apply in future. And blade 2 it's talks about the blade 2 is about the subject matter in which you are going to apply that field. देखिए बुनियादी तौर पर say let's take an example of an engineer. जब उसके फंक्शन की हम बात करते हैं तो एक तो उसका है नॉलेज ऑफ द फील्ड, यानी अगर सिविल इंजीनियर है, एक सिविल इंजीनियर है, उस सिविल इंजीनियर की पहली कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए कि ही शुड बी नोइंग द नॉलेज ऑफ हिज फील्ड. कि फर्स्ट करें सिविल इंजीनियर क्या करता है? ही बिल्ड्स रोड्स, ही बिल्ड्स बिल्डिंग्स, सो ही शुड बी नोइंग द बेसिक्स ऑफ हिज पर्टिकुलर एरिया. उसे पता होना चाहिए कि किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में सबसे पहले उसकी लैंड का टेस्ट होना जरूरी है, उसका जो आपका स्ट्रक्चर व्यू है उसको देखने की जरूरत है, उसका जो डिफरेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन तमाम के बारे में उसका नॉलेज होना इंपॉर्टेंट. सो द फर्स्ट थिंग रिमेन्स, ब्लेड नंबर 1 सेज द नॉलेज ऑफ द फील्ड एंड नंबर 2 इज द सब्जेक्ट मैटर आई मीन इन विच ही इज गोइंग टू अप्लाई दोज. देखिए एक इंजीनियर जब आता है फील्ड में तो उसके पास बेसिकली नॉलेज होता है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मुताबिक, राइट? अब if he is asked to build a building in a sandy area, then he has to take care of the particular things in a different perspective. If he has been asked to build a building in the hilly area, तो उसको different aspects को देखना है. अगर वो किसी plain grounds के ऊपर जाता है तो उसको different aspects को देखना है. तो the blade number 1 is talking about the बेसिकली द नॉलेज ऑफ द फील्ड, कि उसको इन तमाम एस्पेक्ट्स का आइडिया होना चाहिए. और जो दूसरा है वो बात करता है आपको उस पर्टिकुलर स्फीयर का जहां पे उस नॉलेज को आप अप्लाई करते हैं.
बुनियादी तौर पे इसको हम यूं भी कह सकते हैं, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं पब्लिक साइड पर, तो इसके दो पार्ट हैं। एक है प्रिंसिपल्स, आई मीन यू शुड बी नोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, द फर्स्ट थिंग। You should be knowing the art of public administration. You should be knowing the basics of public administration. ये हैं आपके principles. और दूसरी क्या चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट? दूसरी है जनाब आपका sphere, in which you are going to apply these principles. देखिए sphere की हम बात करते हैं तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या spheres हो सकते हैं? He can be performing his duties in a federal government setup, तो उसका स्फीयर फेडरल गवर्नमेंट है। ही कैन बी परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज इन अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप, तो उसका स्फीयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। ही कैन बी परफॉर्मेंस हिज ड्यूटीज इन अ लोकल गवर्नमेंट सेटअप, तो उसका स्फीयर लोकल गवर्नमेंट है। ही कैन बी परफॉर्मिंग ड्यूटीज इन ऑटोनोमस सेटअप्स, तो उसका स्फीयर ऑटोनोमस सेटअप होगा। सो अब एक चीज है कि उसकी प्रिंसिपल से वाकिफ होना कि एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। दूसरी जो चीज मैटर करती है वो करती है कि जिस स्फीयर में वो काम करता है उसे उस स्फीयर के डायनामिक्स का आइडिया है। देखिए फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स कुछ डिफरेंट होंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूल्स कुछ डिफरेंट होंगे, लोकल गवर्नमेंट के रूल्स कुछ डिफरेंट होंगे। सो ऑफिसर के जो दो पार्ट्स हैं, यानी जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टू ब्लेड्स की बात करते हैं तो ब्लेड नंबर 1 इज द नॉलेज ऑफ द फील्ड, द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स, द कैपेबिलिटी टू डील विद पर्टिकुलर सिचुएशन इन द लाइट ऑफ द रूल्स। एंड द सेकंड थिंग इज व्हेन ही इज परफॉर्मिंग इन द डिफरेंट स्फीयर्स, यानी ब्लेड नंबर 2 जिसे आप सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, जब वो डिफरेंट स्फीयर्स में परफॉर्म करता है तो उसको उस पर्टिकुलर एरिया का नॉलेज होना जरूरी है। सो दिस इज वेयर योर स्कोप, ये जो आपका सब्जेक्ट मैटर व्यू है वो इन दो एस्पेक्ट्स की बात करता है। देखिए इसी तरह एक दूसरे प्रोपोनेंट हैं, उनका नाम है वॉकर। उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से बयान किया। वॉकर क्या कहते हैं? वॉकर कहते हैं एक है जी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और एक है अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से क्या मुराद है कि एक है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और एक है आपकी अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी से क्या मुराद है? अ पर्सन शुड बी नोइंग द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन एज अ सेकंड ब्लेड ही हैज टू अप्लाई दोज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स इन द फील्ड, जिसको हम कहते हैं अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे देखिए एक आपका सोशल साइंसेज का कॉन्सेप्ट है, फिजिकल साइंसेज में भी है, साइकोलॉजी। कुछ साइकोलॉजिस्ट होती, यानी पहले आप साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, साइकोलॉजी क्या है, उसके बेसिक्स क्या हैं, उसके डायनामिक्स क्या हैं। और नंबर 2 इज द अप्लाइड साइकोलॉजी, कि आप उस वो जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हैं, आई मीन वो जो नंबर 1 नॉलेज ऑफ द फील्ड है, जब आपने सीख लिया है तो अब आप सब्जेक्ट मैटर व्यू के अंदर बेसिकली ब्लेड 2 जो है वो उनको पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई करने की बात करता है, जस्ट लाइक अप्लाइड साइकोलॉजी। बिल्कुल ऐसे ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है कि यू शुड बी नोइंग द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और नंबर 2 इज अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं। सो ये बुनियादी तौर पर आपकी जो कॉन्सेप्ट है स्कोप के हवाले से वो ये सिलसिला है कि इसमें डिफरेंट प्रोपोनेंट्स ने अपने अपने अंदाज में बात को समझाने की कोशिश की है। लेकिन जैसे मैंने इनिशियली अर्ज किया कि जैसे सब्जेक्ट की डेफिनेशन के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ थॉट है, बिल्कुल ऐसे ही जो आपका स्कोप है उसके अंदर भी डाइवर्सिटी ऑफ थॉट है। एक व्यू जो कि मैनेजरियल स्कूल ऑफ थॉट था वो चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके पेश करता है। दूसरा जो सब्जेक्ट मैटर व्यू है उसमें डिफरेंट प्रोपोनेंट्स ने अपने अपने अंदाज से बात को समझाने की कोशिश की है, जिसमें ब्लेड 1 ब्लेड 2 का थॉट है, प्रिंसिपल्स फेयर्स की बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। तो इस तरह बेसिकली हम एस्टेब्लिश करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या। देखिए एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि ये इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, और अभी इसमें शायद देयर आर सो मेनी विस्टास टू बी एक्सप्लोर्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका स्कोप इतना वाइड है कि सिंपल पास्ट कॉप जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो इसको इंट्रोड्यूस, इसको प्रॉपरली कवर नहीं कर। अच्छा, शुरू में हम बात दूसरी कर रहे थे जिसकी कंटिन्यूटी मैं आपको बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक कॉमन फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, whether
इट्स अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्दो कि यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट का स्कोप है वो सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक कॉमन फंक्शन है, तो कुछ चीजें तो बिल्कुल आपको कॉमन नजर आती हैं पब्लिक और प्राइवेट में। मसलन द एम्प्लॉयज ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर इंटरचेंज्ड। आप देखते हैं कि बहुत सारे पब्लिक साइड के जो एम्प्लॉयज हैं, आफ्टर रिटायरमेंट, ड्यूरिंग सर्विस, आफ्टर सस्पेंडिंग देयर पर्टिकुलर services in the government sector, they go to the private sector. Similarly, many of the people from the private sector, they come to the public sector, they are consultants and other positions. So एक तो ये है कि कुछ चीजें तो कॉमन है। नंबर वन, इनके एम्प्लॉयज एक्सचेंज होते हैं। नंबर टू, जितनी भी नोवल टेक्निक्स हैं, मॉडर्न थिंग्स जो है, जो नई टेक्निक्स हैं, वो अडॉप्ट की जाती हैं पब्लिक से प्राइवेट में और प्राइवेट से पब्लिक में। नंबर थ्री, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मिलती जुलती हैं। चाहे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, यानी आप जीएम ऑफ अ प्राइवेट फर्म और अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसमें वो एचआर को देख रहा होगा, उसमें वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख रहा होगा, उसमें उनकी जो बेसिक जो फंक्शन है उसको देख रहा होगा, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उनकी कॉमन होती हैं। एंड लास्ट थिंग इज बोथ ऑफ देम आर एडॉप्टेबल। एडॉप्टेबल इन सेंस कि अगर कुछ नया आता है, अच्छा आता है, दे आर रेडी टू अडॉप्ट दैट। ऑल्दो कि वो पब्लिक साइड पे उसकी जो एक्सेप्टेंस का इंटेंसिटी है या उनका जो लेवल है वो कंपैरेटिवली कम नजर आता है, प्राइवेट में ज्यादा आता है, बट बोथ ऑफ देम आर एडॉप्टेबल। तो ये तो वो चंद एक चीजें हैं जो आप कह सकते हैं कि कॉमन है, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन बहुत सी जगहों पे आपको इनमें डिफरेंस नजर आता है। लेट्स ट्राई टू enumerate few of the differences. For example, public administration is bureaucratic in nature, right? जबकि private administration जो है, that's business like. The prime concern of a private administration is not the bureaucratic attitude, it's basically the business like concept, na? Public administration is political. I mean, you can't separate the political side in public administration. देखिए, अल्टीमेटली आप जिस सेटअप में काम कर रहे होते हैं, से इफ यू आर वर्किंग एज अ सेक्रेटरी ऑफ अ डिपार्टमेंट, देन योर डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी हेडेड बाय अ मिनिस्टर। फेडरल गवर्नमेंट है तो उसमें एक फेडरल मिनिस्टर हो सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो एक प्रोविंशियल मिनिस्टर हो सकता है, हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ योर मिनिस्ट्री। सो यू कैन नॉट इग्नोर द पॉलिटिकल साइड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जब हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो private administrator is not bound to listen any political person even in his own area. So public administration is political, private is comparatively apolitical. Public administration जो है वो important issues को डील करती है। देखिए, डिफेंस है, कोई प्राइवेट सेटअप नहीं देखता। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कोई प्राइवेट सेटअप्स नहीं देखते। आप फाइनेंस है, बुनियादी तौर पर जो नेशन टू नेशन कॉन्सेप्ट है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं दे आर टेकन केयर ऑफ बाय द फॉरेन ऑफिसेज हैं, दे आर टेकन केयर ऑफ बाय द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और लेसर इंपॉर्टेंट जो है वो प्राइवेट देखती है। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी उसका जो फ्रूशन है दैट गोज टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ऐसा नहीं होता कि आप एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसका बेनिफिशियरी एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है या पर्टिकुलर कम्युनिटी या क्लास हो सकती है। जब कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करती है तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बेनिफिशियरी होती है, या उस थॉट की या उस पॉलिसी की बेनिफिशियरी होती है, वो सब उसमें चल रहे होते हैं बुनियादी तौर पर। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पॉलिसीज होती हैं वो यूनिफॉर्म फॉर ऑल होती हैं, यानी अगर कोई रूल्स बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दैट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में इट कैन बी अदरवाइज। मिसाल के तौर पे आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, फाइन, आप कोई चीज परचेज करते हैं, वो आपको
कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करता, नो डिस्काउंट। एक दूसरा कस्टमर आता है, उसको 5% 10% डिस्काउंट ऑफर कर देता है। अगर आप इस पर रेजिस्ट करते हैं कि जी आपने मुझे तो कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया और उस पर्टिकुलर कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो कह सकता है कि जनाब ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, मंथ में इसकी इतनी ट्रांजैक्शन होती है मेरे साथ, लिहाजा इसलिए उनको डिस्काउंट ऑफर किया है। मेरी पॉलिसीज यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि प्राइवेट में तो ये पॉसिबल है, लेकिन पब्लिक की जो पॉलिसीज होती हैं वो यूनिफॉर्म फॉर ऑल होते हैं। ये नहीं हो सकता कि पर्सन एक्स के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने की डिफरेंट एसओपीज और डिफरेंट सिलसिले हों और दूसरे के लिए। ये अलग बात है कि जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है वो अनफॉर्चुनेटली सफरिंग्स होती हैं पाकिस्तान के अंदर, कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक तो ये चाहिए ना कि जो भी रूल्स हैं वो एप्लीकेबल ऑन एवरीबॉडी होने चाहिए, सबके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक अलग सेपरेट सिचुएशन है कि जिसमें रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्योंकि इतना पॉपुलराइज नहीं है। अदरवाइज जो पॉलिसीज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं वो यूनिफॉर्म फॉर ऑल होती हैं। इसी तरह आप देखिए कि पब्लिक में मोनोपोली होती है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में वापडा है, ठीक है, बेसिकली वो कोई दूसरा प्राइवेट सेटअप ऐसा है नहीं है जो इस तरह की सर्विसेज दे सके, तो मोनोपोलिस्टिक होती हैं। प्राइवेट में मोनोपोलिस्टिक आमतौर पे नहीं होता, सिवाय बहुत कम चांसेस में कहीं कोई एक ब्रांड बहुत अगर आगे निकल जाता है तो फॉर सम टाइम वो मोनोपोलिस्टिक रह सकता है, कोई ना कोई कंपटीटर उसका आ जाता है। इसी तरह पब्लिक का जो बेसिक कंसर्न होता है वो सर्विस ओरिएंटेशन होता है, सर्विस ओरिएंटेशन में क्या है? द पर्पस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली द प्राइम पर्पस इज द बिजनेस, टू अर्न प्रॉफिट, जबकि पब्लिक के अंदर प्राइम जो पर्पस होता है वो सर्विस ओरिएंटेशन, टू फैसिलिटेट द पीपल। दैट्स द प्राइम कंसर्न ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक स्टेट के नाम पे चलती है, इट्स ऑन द स्टेट्स नेम। प्राइवेट किसी इंडिविजुअल के नाम पे चल सकती है, किसी प्राइवेट पर्सन के नाम चल सकती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल है, एंड अकाउंटेबल एट वेरियस फोरम्स। दे आर अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ द लेजिस्लेशन, दे आर अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ their political heads, they are accountable in front of their senior officers and many of the other setups, many of the agencies. So public administration is accountable to many of the systems which are prevailing in a public structure, public government structure, public setup. But जो private है वो आमतौर पर accountable किसी को नहीं होती, वो उनका अपना एक सिस्टम है जिसको देखते हैं। पब्लिक के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ओपन होते हैं, ओपन फॉर ऑल। कोई भी शख्स आकर किसी पब्लिक ट्रांजैक्शन के सिस्टम में अपने प्रिंसिपल्स को छुपा नहीं सकता। प्राइवेट के प्रिंसिपल्स इट्स नॉट अ बाइंडिंग ऑन दैट कि उनको ओपन रखें या नहीं रखें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली उनका जो एफिशिएंसी लेवल होता है वो लो होता है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड रखता है, अनफॉर्चुनेटली उसमें और कई सारी खराबियां हैं। सो उनका जो एफिशिएंसी लेवल है वो लो होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेटअप्स। कई सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। जब तक पीटीसीएल एक पब्लिक सेटअप था तो उसके अंदर बुनियादी तौर पर बेपनाह एम्प्लॉयज़ थे। जब उसको मार्जिनली उसमें गवर्नमेंट के शेयर्स को बहुत कम कर दिया और टाइप ऑफ प्राइवेट स्ट्रक्चर के करीब कर दिया गया, तो आप देखते हैं वहाँ पे बहुत से लोगों को डाउन साइजिंग कर दी गई। सो जो पब्लिक है उसके अंदर बेसिकली कंपैरेटिवली आपकी जो एफिशिएंसी है वो लोअर नज़र आती है, प्राइवेट्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा नज़र आती है। और लास्ट थिंग इज़ पब्लिक जो है वो सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट लॉज होती है। प्राइवेट सेटअप्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट लॉज आमतौर पे नहीं नज़र आते। आपको मैक्सिमम जो नज़र आते भी हैं वो सिर्फ इतने नज़र आते हैं कि बुनियादी तौर पर उनका मानना ये होता है कि जनाब फर्ज करें एक कंपनी आपने बनानी है तो उसको कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करना है खुद को, उसके बाद बाकी जो उसके सेटअप्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। लेकिन पब्लिक सेटअप्स के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यू आर बाउंड टू फॉलो सम सेट ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल। तो ये है जनाब चंद एक बुनियादी डिफरेंसेस, कुछ कॉमनैलिटीज थी जिनको हमने डिस्कस किया, और चंद एक बुनियादी डिफरेंसेस हैं कि पब्लिक और प्राइवेट बेसिकली कहाँ खुद को आप अलग नजर आते हैं। लेट्स डिस्कस वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस और आर्ट।
जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि इट्स डिफिकल्ट टू टीच साइंस, इट्स इजी टू प्रैक्टिस एन आर्ट बट डिफिकल्ट टू टीच एन आर्ट। उसकी वजह यह है कि देखिए अभी तक भी द प्रोपोनेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दैट वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। देखिए अब कुछ एस्पेक्ट्स तो ऐसे हैं जिससे आपको लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। मिसाल के तौर पे एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसको फॉलो किया जाता है, सिस्टमैटिक नॉलेज के तहत ही ये सिलसिला चलता है सारे का सब। दूसरी बात, हमें कुछ साइंटिफिक मेथड्स नजर आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिनको फॉलो किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स। तो इससे भी ऐसा लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली एक साइंस है। फिर क्या होता है कि प्रेडिक्शन और इनसाइट नजर आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि बेस कुछ ऑब्जर्वेशंस पर होती है, बेस किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल पर होती है, किसी मेथड पर होती है। तो इस तरह के एस्पेक्ट्स तो ये बताते हैं कि शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस, बट एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जहां पर हमें ये नजर आता है कि it's not basically a science, it has got various aspects of being a good artist. Say जो क्लासिकल अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कहती है कि द डाइकोटमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर इस थ्योरी को हम, साइंटिफिक थ्योरी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि जनाब कोई पॉलिटिकल पर्सन हैज गॉट नथिंग टू डू विद एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और अ डिपार्टमेंट और अ डिस्ट्रिक्ट, व्हाटएवर दैट इज, तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं जिसके अंदर आपको बीइंग एन आर्टिस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कुछ फैसला साजी करनी पड़ती है, आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स जो आपके अंडर काम कर रहा है उनको मोटिवेट करने के लिए आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है, जहां बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपके अप्लाई नहीं होते और आपको ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बुनियाद पर आप चीज़ों को आर्टिस्टिक वे में आगे लेकर चलते हैं। सो ये बात कहना थोड़ी अभी भी मुश्किल है कि वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस और मोर ऑफ द आर्गुमेंट्स गो टुवर्ड्स आर्ट, बट still the tilt goes towards that public administration is an art, and we need to learn that art, we actually practice that art, and with the passage of time you are more involved in public administration, you become a better administrator। और उसकी वजह बेसिकली यही है कि एक आर्ट को प्रैक्टिस करते करते आप इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि फिर पर्टिकुलर सिचुएशन को डील विद करना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होता है, बीइंग ए गुड आर्टिस्ट, राइट जी। बहरहाल अभी भी हम ये कह सकते हैं कि परहैप्स देयर आर सो मेनी विस्टाज स्टिल टू बी एक्सप्लोर्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो शायद इस डिसीजन को या इस थॉट को मजीद क्लैरिफाई कर सकता है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस वक्त तो हम यही कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज परहैप्स मोर टिल्टेड टुवर्ड्स एन आर्ट। अब हम देखते हैं कि किसी भी मॉडर्न वेलफेयर स्टेट के अंदर आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है। देखिए, एज आई सेड प्रीवियसली, द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट वाज अ सिक्योरिटी स्टेट। रियासत का बुनियादी पर्पस सिर्फ यह होता था कि लोगों से रेवेन्यूज कलेक्ट करे थ्रू टैक्सेस, थ्रू ड्यूटीज, थ्रू फाइन्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। And in response to that, what state used to do is कि वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी इंटरनल थ्रेट से भी, यानी जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको भी देखती थी, और जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उसको भी सेफ गार्ड करती थी किसी भी इंडिविजुअल को। सो बुनियादी तौर पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो ये था जनाब कि हमें देखना ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, सॉरी सिक्योरिटी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे मॉडर्न डे साइंसेज ने डेवलप किया, ये सारा एवोल्यूशनरी सेटअप जिसको हमने जिक्र किया वो हुआ, तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बदला और लोग ये समझने लगे जनाब कि बुनियादी तौर पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी स्टेट है बहुत रेस्ट्रिक्टेड कॉन्सेप्ट था
विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट आया, जिसमें एवरी इंडिविजुअल एक्सपेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ पर्सन टू द डेथ, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो कहता है जी जनाब मुझे जब चाइल्ड इज बॉर्न गवर्नमेंट विल रजिस्टर हिम और हर, नादरा रजिस्टर करेगा, फिर जनाब उसकी हेल्थ के इश्यूज को गवर्नमेंट देखे, फिर उसकी स्कूलिंग के इश्यूज को गवर्नमेंट देखे, फिर उसके जॉब के इश्यूज को गवर्नमेंट देखे, उसको सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है। फिर उसको ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी फ्यूचर जनरेशन है, जो बच्चे हैं उनको मामला को गवर्नमेंट देखे, आपको बेहतर रोड्स गवर्नमेंट दे, आपको साफ सुथरा पानी गवर्नमेंट दे। ये तमाम जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक राइट्स के हवाले से चीजें आ गई हैं, बेसिकली इन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट था इसको तब्दील कर दिया। अब जब कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट तब्दील हुआ तो रियासत अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे करेगी? देखिए, रियासत तो बेसिकली रियासत का जो स्ट्रक्चर है उसमें जैसे हम कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप्स के अंदर जिसमें पार्लियामेंट्री सेटअप होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट ऊपर बैठी हुई है, वो पॉलिसी मेकिंग करती है इन द लाइट ऑफ द लेजिस्लेशन जो कि आपके लेजिस्लेटर्स कर देते हैं। अब उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन लोग आएंगे, कौन अपना रोल प्ले करे? अब उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने पड़े। अब वो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं बेसिकली वो जाकर गवर्नमेंट की उन यानी what a public administrator actually does. A public administration works as a bridge between the government, between the ruler and the ruled. अब रूलर और रूल्ड के बीच में जो ब्रिज है वो गवर्नमेंट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उनकी इंप्लीमेंटेशन होती है थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो किसी भी वेलफेयर स्टेट के अंदर जो रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। कहा यह जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली सोशल इंजीनियर। देखिए, जैसे एक सिविल इंजीनियर है, ही बिल्ड्स रोड्स, ही बिल्ड्स डैम्स, ठीक है, ही बिल्ड्स बिल्डिंग्स। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसका सेटअप जो है वो इलेक्ट्रिकल साइड से। बिल्कुल इसी तरह एक जो ब्यूरोक्रेट है, एक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका प्राइम जॉब है टू बिल्ड द सोसाइटी। हिज जॉब इज लाइक अ सोशल इंजीनियर। उसको सोसाइटी को बिल्ड करना है। देखिए, प्रोफेसर W.B. डॉनहम कहते हैं, इफ civilization fails, it will mainly be because of the breakdown of administration. If civilization fails, it will mainly be because of the breakdown of administration. अगर किसी पर्टिकुलर तहजीब के अंदर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं तो उसकी बुनियादी वजह होगी कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ब्रेकडाउन की वजह से ऐसा होता है। सो बात हम ये समझना चाह रहे थे कि किसी मॉडर्न वेलफेयर स्टेट के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का रोल क्या होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अंडर few headings. The first thing, policy making. देखिए, primarily policy making is the job of executives, but in a country like Pakistan, where we have executives who are laymen, who are not knowing even the ABC of policy making, then ultimately this particular function is also shifted to the public administrators. They are also involved in policy making as well. अब जो पॉलिसी बनती है, एटलीस्ट अगर वो डायरेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाते हैं, तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि वेयर द इनकैपेसिटी ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव प्रिवेल्स, वहां पे कम से कम मेजर इनपुट पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का आता है। अब जो पॉलिसी बनती है उसी की बेसिस के ऊपर पूरी सोसाइटी, यानी उस पर्टिकुलर फील्ड में उस पॉलिसी ने इंप्लीमेंट होकर लोगों को फैसिलिटेट करना है। यानी रियासत का जो बुनियादी फंक्शन है वेलफेयर स्टेट वाला, देखिए आज हम बड़ा कॉमन एक फिनोमिना सुनते हैं कि वी वांट टू ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान इनटू द स्टेट ऑफ मदीना। अब बेसिकली स्टेट ऑफ मदीना था क्या? स्टेट ऑफ मदीना का कॉन्सेप्ट प्राइमरीली इज ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। एक ऐसी रियासत जो अपने हर शहरी को उसके बेसिक राइट्स को इंश्योर करती है, उसके तमाम बेसिक्स को न सिर्फ राइट्स को इंश्योर करती है बल्कि इस बात को भी इंश्योर करती है कि रियासत को कोई फंक्शनरी किसी पर्टिकुलर
पर्सन किसी भी सिटीजन के साथ कोई ऐसा ट्रीटमेंट ना कर सके जो उसके बेसिक राइट्स के डिविएशन में हो सकता है। सो जो पॉलिसी मेकिंग है वो इफेक्ट करने जा रही है पूरी की पूरी सोसाइटी को। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि पॉलिसी मेकिंग में कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का इनपुट आता है, जहां लेमैन हमारे मिनिस्टर्स हैं अनफॉर्चुनेटली। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। देखिए, एज आई सेड ऑलरेडी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इज अ सोशल इंजीनियर। अब सोसाइटी बिल्डअप कैसे होगी अगर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म करता है? तो आपने अक्सर देखा होगा, अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर comes as a DC of a district, and within no time the dynamics of the whole of the district is changed. What he does, being an administrator, he is going to affect the society. A weak administrator comes, a bad administrator comes, it has also got its impact on the society. यानी अगर किसी, फर्ज करें आप किसी डिस्ट्रिक्ट का एक डीपीओ एक वीक एडमिनिस्ट्रेटर आता है, तो उसकी जो रॉन्ग पॉलिसीज हैं उसकी वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाती है। और किसी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रिप्यूट होता है और वो उन तमाम चीजों को अगर एडजस्ट कर देता है, तो इट मीन्स व्हाट ही हैज डन इज कि उसने सोसाइटी को डायरेक्टली इफेक्ट किया है और पॉलिसीज के थ्रू तो सोसाइटी को इफेक्ट कर ही रहा है। सिटिंग इन द कैपेसिटी ऑफ द फेडरल सेक्रेटरीज, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, although the policy making, as I said, remains the prime function of the executives, the ministers of that concerned departments, but because of the type of political structure we are having in the country, तो कहीं ना कहीं इनपुट आपके एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बढ़ जाता है। Then comes administration and individual. देखिए, पॉइंट ये है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, देखिए, individuals make a society, right? Individuals make a society. If the state is taking care of each and every individual of the society, it's actually taking care of the overall society. और किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का किसी इंडिविजुअल को एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट या वो एनवायरमेंट देने का क्या मतलब है? एज आई सेड कि राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड टिल द डेथ ऑफ अ पर्सन, a public administrator is going to affect the various steps being taken in the life of that individual. जो पॉलिसीज वो बनाता है, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन का सिलसिला होता है, जो लॉज ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के जो मामलात हैं, जो बेसिक राइट्स उसको कॉन्स्टिट्यूशन अवार्ड करता है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है, ये तमाम की तमाम जो है वो एज ए इंडिविजुअल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके थ्रू बेसिकली ये चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। देन कम्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी। वेल, इन मॉडर्न टाइम्स द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल अप टिल नाउ विच इज एप्लीकेबल इन बल्क ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज द डेमोक्रेटिक मॉडल। आई मीन, डेमोक्रेसी क्या है बेसिकली, चाहे उसमें कोई प्रेसिडेंशियल सेटअप हो या पार्लियामेंट्री सेटअप हो, डेमोक्रेसी की बुनियादी सेंस क्या है? जमहूर की हुकूमत। आई मीन, द पावर बिलोंग्स टू द पीपल। अब किसी डेमोक्रेटिक सेटअप को स्ट्रेंथन करने में, किसी डेमोक्रेटिक सेटअप को बुनियादी तौर पर जो उसकी वैल्यूज हैं, देखिए, हम डेमोक्रेसी के बेसिक फ्रूट्स हैं क्या? और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी टॉक्स अबाउट, देखिए, हम सिर्फ इस हद तक नहीं, डेमोक्रेसी बुनियादी तौर पर इट टॉक्स अबाउट द प्रॉस्पेरिटी, द प्रोटेक्शन, राइट, द प्रोग्रेसिव अप्रोचेस, द अकाउंटेबिलिटी, द ट्रांसपेरेंसी, द रूल ऑफ लॉ. These are the basic concepts which are actually the fruits of democracy. अब the point is कि अब अगर कोई डेमोक्रेटिक कल्चर किसी मुल्क में है, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वो डेमोक्रेसी के ट्रू फ्रूट्स को इंश्योर करना चाहती है, तो प्राइमरीली उनकी पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन में एडमिनिस्ट्रेटर का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का बेसिक रोल बनता है। गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, एक रूल्स बनाती है। अब रूल ऑफ लॉ का सिलसिला तो ये है कि दैट द रूल्स पॉलिसीज शुड बी एप्लीकेबल अक्रॉस द बोर्ड। देखिए, रूल ऑफ लॉ
का क्या मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ। अब इसके इंप्लीमेंटेशन को किसने इंश्योर करना है? एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। अब ट्रांसपेरेंसी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक डेमोक्रेसी। अब उस ट्रांसपेरेंसी की इंश्योरेंस के लिए, यानी जो गवर्नमेंट एक ट्रांसपेरेंसी की पॉलिसी बनाती है, उसकी इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटर इन्वॉल्व होगा। आप बात करते हैं प्रोटेक्शन की, आप बात करते हैं प्रोग्रेसिवनेस की, आप बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी की। सो इन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है वो बड़ा, आई मीन फॉर अ कॉमन मैन इट्स वेरी। देखिए, कहा जाता है इफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेल्स टू ब्रिंग अ सोशल चेंज इन सोसाइटी, if a public administration fails to bring social change in society, the alternate will be a bloody revolution. So अगर सोसाइटी में, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो सोशल इंजीनियर के तौर पे काम करता है, अगर किसी सोसाइटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशल चेंज नहीं ला पाती, तो फिर जो अल्टीमेट जो अदरवाइज ऑप्शंस है, दैट्स अ ब्लडी रेवोल्यूशन. सो द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट वन, administration in war and peace. देखिए, बुनियादी तौर पर किसी भी रियासत में जब हम बात करते हैं कि दो तरह की वॉर्स हो सकती हैं, जैसे सिक्योरिटी स्टेट के अंदर रियासत क्या करती थी, दो तरह के थ्रेट्स से अपने सिटीजन्स को इनसेफ करती थी. एक फॉरेन इन्वेडर्स का थ्रेट, एक इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. बिल्कुल ऐसे ही जब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का वॉर एंड पीस के अंदर क्या सिलसिला है. देखिए, योर फोर्सेस आर एक्चुअली फाइटिंग ऑन द बॉर्डर्स अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स इन द वॉर टाइप सिचुएशन. They are trying to plan how to restrict those forces to intervene into your territorial jurisdiction. That's the function of the security agencies war के अंदर. जिस तरह आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज वॉर सिचुएशन में किसी फॉरेन इन्वेडर को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को आगे चलने से रोकने की कोशिश कर रही होती है, बिल्कुल ऐसे ही आपकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीस टाइम सिचुएशन में कुछ बुनियादी चीजों के खिलाफ फाइट कर रही होती है. यानी जो उनकी वॉर है, दैट्स बेसिकली अगेंस्ट प्रॉफिटरिंग, दैट्स बेसिकली अगेंस्ट ब्लैक मार्केटिंग, दैट्स बेसिकली अगेंस्ट होल्डिंग. अगर आज भी हम कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त 1947 की स्पीच देखते हैं, तो जिन पर्टिकुलर सिचुएशंस से कायद ने बताया कि आपने सोसाइटी को किन चीज़ों से बचाना है, किन प्रॉब्लम से बचाना है, उसमें चंद बेसिक कंसेप्ट्स थे कि आप प्रॉफिटरिंग से, ब्लैक मार्केटिंग से, होल्डिंग से, जिस तरह आपकी फोर्सेस फॉरेन फ्रंट्स पे लड़ रही होती हैं वॉर के टाइम में, बिल्कुल ऐसे ही आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है वो पीस टाइम में इस तरह की खराबियों के खिलाफ लड़ रहा होता है. सो जब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसका जो रोल है इन मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, तो इन तमाम एस्पेक्ट से हमें ये अंदाज़ा होता है कि the role of public administrator remains very important in transforming a state into a modern welfare state beyond the other many of the factors which have got their own role. The administrators have got their own role. Last but not the least, हमें जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रो को इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया कि किस तरह ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ओरिजिनेट हुआ, किस तरह हमने देखा कि उसकी एवोल्यूशन हुई, हमने देखा कि उसको डिफाइन हम कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट का बेसिक मीनिंग क्या है, हमने उसको स्कोप को डिटरमिन किया, हमने डिफरेंस देखा पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और हमने ये देखा कि किस तरह एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट को डेवलप करने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है. देयर हैव बीन डिफरेंट स्टडीज. पाकिस्तान, देखिए, वी हैव बीन हैविंग दिस ड्रीम कि जी वी मे हैव पाकिस्तान एज ए वेलफेयर स्टेट. इस पे कई सारी ऑलरेडी स्टडीज हुई. उसमें एक रिपोर्ट है, रिलिफ ब्रेबेंती हैं, उन्होंने पाकिस्तान में पॉलिटिकल मॉडर्निटी लाने के लिए बुनियादी तौर पर 4 चीज़ों को जिक्र किया. नंबर 1, ही सेड यू नीड टू ब्रिंग इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स. आपको इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने की जरूरत है.
I mean, with the change of individual, the policies should not change. You need to develop the institutional apparatus, institutional structure develop करने की जरूरत है. दूसरी बात उन्होंने ये कि you need to expand, you need to work on expansion of the popular participation in political process. आपकी जो डिफरेंट डेस्परेट फोर्सेस हैं, आपकी जो वो फोर्स हैं जो आपके पोलिटिकल प्रोसेस से आउट हैं, आप उनको वाइड पॉपुलर उन फोर्सेस को आप पोलिटिकल प्रोसेस में शामिल कीजिए. तीसरी बात उन्होंने ये कही कि यू नीड टू इम्प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी. देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए अगर कोई एक फार्मूला हमें पता करना चाहिए, देखना चाहिए, perhaps the national integrity is one of the most important aspects. And the last thing is you need to blend the popular forces with the desperate forces. आज आपको सिंध रूरल के अंदर कुछ फोर्सेस नज़र आती हैं, बलोचिस्तान के अंदर कुछ फोर्सेस नज़र आती हैं. इन डेस्परेट फोर्सेस को आपको ब्लेंड करना है पॉपुलर फोर्सेस के साथ. तो रिलिफ ब्रिवेंती की जो स्टडी है बेसिकली वो पाकिस्तान को एज आ वेलफेयर स्टेट के अंदर जो डिफरेंट रुकावटें आती रही हैं उस हिस्से में एक रिकमेंडेशन थी. और इन रिकमेंडेशन की लाइट में वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल मॉडर्निटी लानी है तो फिर आपको इन एस्पेक्ट्स पे देखना पड़ेगा. वेल, दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारी जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी वो क्या थी और वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट हैं, और उन स्कूल ऑफ थॉट को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे. थैंक यू.